Hello guys, welcome to iTutor. Hope you all are doing well, preparing well. Only one day left for our exam. So revise अच्छे से. Okay, अभी new things पढ़ना का ज़रूरत नहीं है. तो be revised whatever you studied and be cool. Prepare with your admit card and all other documents related to the exam. Your ID card and passport size photos. Whatever the instruction in admit card, just follow it. And take rest, sleep well before the exam. And अच्छे से एग्ज़ाम लिख देना सब लोग. For the our we already covered the main topics. Today we will discuss personal administration. Tomorrow we will discuss modern technology related to universities. Then we mainly cover the second paper topics. One is public administration and second one is financial administration. We already covered staff and line agencies. We covered and higher education and related current updates. New education policy we covered. So and in first paper you please follow one book, general studies or GK books available in market. Hope you already gone through it. Anyway, I just reminding you, just go through one general knowledge book. That is enough for the first paper. And some of the current affairs you might know because you are already reading the newspaper also. So be prepared and perform well for that day. Okay, today so we will start with the personal administration. First of all, we will see the meaning and concept. What is administration are mainly in two types. One is private and the second one is public administration. For these both administrations, personal administration is common thing. It's a backbone of an organization, right? In personal administration, its other name is human resource management. Personal administration का other name है human resource management. Okay, it's personal means employees. एक organization का employees का administration. That's a basic thing about the personal administration. Employees are the backbone of one organization. We already discussed that. Okay. Manpower or raw labor, people who are able to do work itself, does not only उन लोगों का काम, एम्प्लॉयज़ का काम के लिए अकेले एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगा, राइट? उसके लिए क्या होना चाहिए? एक एम्प्लॉयज़ को अच्छे से एक रिसोर्स बनाना चाहिए, एक इंडिविजुअल को कन्वर्ट टू ह्यूमन रिसोर्स. देन ओनली इट विल सक्सेस थ्रू सिस्टमैटिक. उसके लिए प्लानिंग होना चाहिए, एडिक्वेट ट्रेनिंग होना चाहिए एंड प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए. देन ओनली इट विल वर्क अच्छे से. And personal administration deals with recruitment, placement, training. Just imagine you are going for the IGNOU assistant registrar post, right? तो उसके लिए the first step है recruitment. Recruitment के लिए they are conducting the exam. Day after tomorrow you are facing that exam. Okay, and after that if you qualified the paper, you will face the interview. That's a process of recruitment. And उसके बाद if you qualified the interview, you will get a प्लेसमेंट एंड उसके लिए ट्रेनिंग भी होगा. एंड देन यू सक्सेसफुली कंप्लीट द ट्रेनिंग. देन उसके लिए एक डिसिप्लिनरी मेशर्स होगा, आपका एथिक्स, वॉट एवर लॉज एंड ऑर्डर एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यू नीड टू फॉलो दैट, मेंटेन द एक डेकोरम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, राइट? एंड इट्स ऑब्वियसली इट प्रिवेंटिंग द nepotism and favoritism and monetary and non-monetary incentives and retirement benefits of the personnel with the organization, as well as the handle the nature of the personal relationship in the organization. It will assist the top management in negotiating with the labor unions. Personal administration also include all those activities and functions relating to policy formulation. So mainly they are functioning for policy formulation, planning, policy implementation, social change and modernization, administrative reforms and public relation in an organization. Personal administration is affected by the socio-economic political environment. Like administration is dependent on social and economic and political aspect of an society. Excuse me. For example, in the era of welfare and development programs, personnel or employees are now expected to be more efficient. आजकल 1930s के जैसे नहीं है अभी का administrations and all and working conditions also. So all each organization depends their efficiency, skills and effective and sympathetic and competent होना चाहिए employees, right? People's involvement in administration is also increasing via NGOs, NPOs, civil society and other policies and programs of the government.
And personnel are to perform. We already discussed the last videos. Line and staff agencies, these are the personnels. Commonly line and staff agencies has come under the employees category, right? They are the employees of the organization. Without an efficient personnel management or administration, or more popularly as it human resource personnel development, it is impossible to achieve organizational goals and become a successful organization. In the theoretical part, the concept and the theories came from western countries, because in India the effort, motivation, our personal level, otherwise our welfare of the concept of employees welfare is not that much systematic. It is like a frustration concept and recruitment practice, laws making of public services undertaking, growing labor unrest, loss of production, etc., faced in Indian history, because we are faced lots of war and all. We are on the era of independence. After 1950s, we just got independence and make a government and administration and proper administration. It's grown through gradually only. And so it led to establishment of posts like labor welfare officer or organization, because the era of Britishers employees or laborers are faced so much of pain for and they didn't get any salaries also, basically, so face lots of problems. So that's why as a result it become a post create किया है labor welfare officer का. They look at their welfare. And personal officer in public as well as private organization that have evolved over time since the early 1930s. Also, a lot of events led to its growth in the practical sense, like the shortage of labor and labor issues during the world wars, the Great Depression of 1930s warranted efficient personal administration for elimination of wastage and maximum utilization of resource. So एक era 1930s से ये maximum utilization of resource for maximum benefit, ये concept कब से 1930 से आ गया. So now we will look at the functions of personal administration. First of all, manpower planning. ये तो एक यू ऑल गाइस नो व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट, राइट? सो इससे पहले एक काम होते हैं मैन पावर प्लानिंग. वो मैन पावर प्लानिंग कौन करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन का अंदर का प्रोसेस है ये मैन पावर प्लानिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल आइडेंटिफाई द वैकेंसीज फर्स्ट. एक इंस्टीट्यूट में वैकेंसीज देखते हैं कितना वैकेंसी है, वो किस किस चीज़ के लिए वैकेंसी है. सो एक जॉब डिस्क्रिप्शन होगा, एक टाइपिस्ट का पोस्ट होगा, मे बी एक एडमिनिस्ट्रेटर का पोस्ट होगा, मे बी मैनेजर का पोस्ट होगा, ये सब है जॉब डिस्क्रिप्शन से एक. तो उसके लिए कितना वैकेंसी है ये सब पहले कैलकुलेट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन. आफ्टर दैट दे जस्ट लुक एट द स्किल्स. उसके लिए कौन सा स्किल्स चाहिए, या एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा चाहिए, और स्पेशलाइजेशन कौन सा चाहिए, ये सब चीज़ देखते हैं. एंड इट इनकॉर्पोरेट्स एंड ड्यूरेशन फॉर विच द पर्सन इज़ रिक्वायर्ड. कितना या फुल टाइम एम्प्लॉयज़ होना चाहिए, या 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए, या शॉर्ट टर्म के लिए होना चाहिए, या एग्रीमेंट बेसिस में होना चाहिए, ये सब दे विल डिसाइड फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड अलॉन्ग नेचर ऑफ वर्क कौन सा होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द जॉब in the line with the objective and goals of the organization. objectives वो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव कौन सा होना चाहिए एक्सेट्रा. फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल डिसाइड. एक ऑर्गेनाइजेशन का मैन पावर दे विल डिसाइड कैसे है होना चाहिए, एक रिक्रूटमेंट किस तरीके से होना चाहिए. इट इज़ अ साउंड मैन पावर प्लानिंग दैट गिव्स ए एडिक्वेट टाइम फॉर रिक्रूटमेंट. देन उसके लिए कितना टाइम देना है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होना चाहिए, या जस्ट इंटरव्यू होना चाहिए, या जस्ट एग्जाम्स देना चाहिए, लाइक दैट. ओके. And training of such a personnel. In short, it lays down the full blueprint or chart of process to follow and the time period it should follow. एक पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस का एक ब्लूप्रिंट पहले एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते हैं. वो तो मे बी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में लाइन एजेंसीज आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे आर द अथॉरिटी और दे आर द डिसीजन मेकर. सो दे डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ जॉब वैकेंसीज क्रिएट करना है, कैसे वाला लोगों को रिक्रूट करना है, and all this. So that's the first function of an personal administration, that is manpower planning. And second thing is recruitment. Okay, तो once manpower planning is done, एक सब चीज़ के लिए clarity आ गया in an organization, so then they will start to recruit. The process of recruitment begins. It is the process that entail the search for prospective workers. तो वो recruitment का process क्या है?
वो काम के लिए मोस्ट एप्ट और एफिशिएंट जैसे एक लोगों को क्या करना है, सेलेक्ट करना है. दैट्स द एम ऑफ दैट रिक्रूटमेंट. इट इज़ द process that entail the search for prospective workers and stimulating them to apply for the job put up by the personnel administration on behalf of the organization. सो एक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो द ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट सम कैंडिडेट्स फाइनली एंड उन लोगों के लिए क्या देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं ऑफ कोर्स. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन. एक जॉब मिल गया तो क्या हो जाएगा, हमें नहीं पता है कैसे काम करने है, वो ऑर्गेनाइजेशन का तरीका कैसे है और कैसे वाला, तो उसके लिए ट्रेनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट है, राइट. इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग एंड अपग्रेडिंग और डेवलपिंग द प्रोफेशनल नॉलेज. तो वो चीज़ के लिए एक नॉलेज दे देगा वो लोग. ब्रॉडर विजन, करेक्ट एथिकल एंड नॉवल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, हैबिट्स, एप्टीट्यूड, और ऑर्गेनाइजेशन कैसे बिहेव करना है वहाँ पे, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसे है, ये सब चीज़ के लिए एक ट्रेनिंग दे देगा. अवेयरनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एज वेल एज सोशल ऑब्जेक्टिव्स, इंक्रीजिंग मॉरल एंड मोटिव एंड एम्प्लॉयज़ पोटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूट टू द सेम. तो एक ट्रेनिंग में पूरा चीज़ कवर करते हैं, कैसे काम करना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे एथिकल चीज़ेस क्या क्या है वो, एंड लॉ एंड ऑर्डर क्या है, कैसे फॉलो करना है, ये सब चीज़ वो ट्रेनिंग में कवर हो जाते हैं. एंड ट्रेनिंग आर टू तरीके का है, टू टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज़ देयर. वन इज़ इनफॉर्मल एंड अदर वन इज़ फॉर्मल ट्रेनिंग. इन इनफॉर्मल ट्रेनिंग द ट्रायल एंड एरर मेथड इज़ यूज्ड एंड लेसन्स आर लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स बाय एम्प्लॉयज़. एक काम करना शुरू करते हैं, उसमें से मिस्टेक्स हो जाएगा एंड मिस्टेक्स हो जाएगा, एरर्स हो जाएगा, तो दे विल एंड अनदर ट्रायल दे देगा, और ट्रायल के थ्रू और मिस्टेक से थ्रू दे विल लर्न द लेसन्स. दैट इज़ द इनफॉर्मल ट्रेनिंग. ओके, एंड फॉर्मल ट्रेनिंग क्या होते हैं, उसके लिए प्री एंट्री ट्रेनिंग होते हैं. लाइक यूपीएससी रिक्रूट करते हैं IAS, IFS एंड IPS ऑफिसर्स को, दे विल प्रोवाइड ए फॉर्मल ट्रेनिंग. ओके, उसके लिए एक सेपरेट कैम्प भी होते हैं वहाँ पे. एंड फॉर प्री ट्रेनिंग ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होते हैं, इन सर्विस ट्रेनिंग भी होते हैं. ऐसे दे पोस्ट ऐसे सब कलेक्टर्स एंड ऑल, दैट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग पीरियड में दे आर वर्किंग एज ए सब कलेक्टर एंड ऑल. दैट्स द एग्जाम्पल फॉर द फॉर्मल ट्रेनिंग. वोकेशनल ट्रेनिंग भी होते हैं. इनफॉर्मल ट्रेनिंग हेल्प in improving the quality of administration, whereas the formal training help is in the broadening the faculty of the personnel. ओके, एंड अदर मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग कैन बी लेक्चर मेथड होगा, केस स्टडी होगा, सिंडिकेट मेथड होगा. सिंडिकेट मेथड मीन्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन combined or making joint effort to undertake some specific duty or transaction in the case of training purposes, etc. Okay, that's about training. एंड अनदर वन इज़ करियर एडवांसमेंट. करियर एडवांसमेंट क्या होते हैं, इट इज़ एन एक्टिविटी दैट प्रमोट जॉब ग्रोथ और एक्सपेंशन ऑफ ए जॉब रोल. एक एम्प्लॉय को अपॉइंट कर दिया, ट्रेनिंग कर दिया, दे स्टार्टेड जेयर जॉब. देन एक पीरियड होते हैं, 1 ईयर पीरियड के बाद एक प्रोबेशनरी पीरियड होते हैं. उसके बाद दे नीड टू, इफ़ यू आर ऑल्सो सपोज यू आर एन एम्प्लॉय, ओके, देन यू नीड अ कैरियर डेवलपमेंट ऑल्सो. योर कैरियर भी डेवलप होना चाहिए साथ साथ वो जॉब के साथ, राइट. इट इज़ एन एक्टिविटी दैट प्रमोट जॉब ग्रोथ और एक्सपेंशन ऑफ जॉब रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. एग्जाम्पल प्रमोशन होना चाहिए, राइट. दैट्स योर वन पार्ट ऑफ योर कैरियर एडवांसमेंट. एंड इंटरनल जॉब पोस्टिंग, सम इंटरनल ग्रुप के अंदर लीडर्स बनाते हैं, दैट्स ऑल्सो शिफ्टिंग जॉब होते हैं. चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं फॉर कैरियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और एडवांसमेंट. तो आपको यू नीड टू ग्रो योर कैरियर थ्रू दैट जॉब, दैट ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो मोर रियलिस्टिक करियर डेवलपमेंट गोल्स होते हैं. तो उसके लिए पहले क्या बनाना है, एक मोर रियलिस्टिक करियर. ये करियर एडवांसमेंट देने में थ्रू क्या होते हैं, रियलिस्टिक करियर डेवलपमेंट गोल्स होते हैं. उसके थ्रू स्किल डेवलपमेंट हो जाते हैं, करियर सेटिस्फैक्शन मिलते हैं. एक इफ़ आपका करियर सेटिस्फाइड है तो यू विल गेट ए सेल्फ कॉन्फिडेंस, राइट. दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एक एम्प्लॉय का. सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. एंड प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज. ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, यू विल मोर एफिशिएंट, then you will do more works, right. तो productivity also increase. and department कैसे एक डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को कैसे हेल्प करते हैं. मे बी वो कैरियर डेवलपमेंट के लिए कोच होगा. ये कोच क्या करते हैं, ही और शी विल आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ एन एम्प्लॉय. ओके, उसका वीकनेस क्या क्या है एंड उसका इंटरेस्ट क्या क्या है, वो उसका वैल्यूज़ क्या क्या है, ये सब आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू एक कोच. एंड एडवाइज़र, एक पोस्ट है एडवाइज़र. क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं कैसे
कैसे जाना चाहिए, एक एडवाइस देते हैं कि ये चीज़ अच्छा होगा, ऐसे कर रहे, बिकॉज एक स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करके एडवाइस देने में ही और शी कैन इम्प्रूव देयर करियर, राइट। देन एक अप्राइसर होते हैं, अप्राइसर व्हाट विल डू द अप्राइसर, अप्राइसर विल इवैल्यूएट एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस, एक एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस वो कितना एफिशिएंट है और कितना हार्ड वर्किंग है, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ हिज परफॉर्मेंस, एंड दिस ऑल इवैल्यूएशन कौन करते हैं, अप्राइसर करते हैं। एंड लास्ट रिसोर्स कौन प्रोवाइड करते हैं, एक रेफरल एजेंट होगा इन वन डिपार्टमेंट में, वो रेफरल एजेंट क्या करते हैं, रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं, व्हाट एवर नीडेड रिसोर्सेज फॉर द करियर एडवांसमेंट, उसके लिए रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, होप यू अंडरस्टूड। एंड नेक्स्ट वन इज पोजीशन क्लासिफिकेशन होते हैं, पोजीशन क्लासीफाई करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ वेरियस पोजीशंस ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमनलिटी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़, एक ड्यूटीज़ के हिसाब से एक डिपार्टमेंट होगा, अकाउंटेंट्स डिपार्टमेंट होगा, पूरे अकाउंटेंट्स को एक साथ करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, सम आर मैनेजर्स होगा तो मैनेजर्स का डिपार्टमेंट एक करते हैं, तो ऐसे एक ग्रुपिंग करते हैं बेस्ड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़। सो इसमें थ्रू क्या होते हैं, इक्वल पेमेंट फॉर इक्वल वर्क, तो एक ग्रुप का पीपल आर डूइंग द सेम नेचर ऑफ वर्क, तो उन लोगों का पेमेंट कैसे होते हैं, मैनेजर का पोस्ट में होते हैं, उन लोगों का पेमेंट कैसे इक्वल होते हैं, तो इक्वल पेमेंट फॉर इक्वल वर्क, मैनेजर्स आर डूइंग द सेम वर्क ऑल द लेवल पे, राइट, तो दे हैव द सेम सैलरी, अंडर पीयून्स है तो दे आर डूइंग द नेचर ऑफ वर्क आर सेम, सो दे हैव द कॉमन सैलरी। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ को डिवाइड करते हैं फॉर द पोजीशन क्लासिफिकेशन में, एंड देन इक्वल पेमेंट फॉर इक्वल वर्क देते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट वन होता है डिसिप्लिन, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ आ गया, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होगा, तो उस एक डिसिप्लिन होना चाहिए, देन ओनली एक ऑर्गेनाइजेशन विल वर्क अच्छे से, राइट। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल द इंडिविजुअल्स टू ऑब्जर्व रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स होगा, उसका रेगुलेशंस होगा, एक पॉलिसी होगा फॉर द इफेक्टिव रनिंग ऑफ द सेम, ओके। अदरवाइज एक एम्प्लॉय विल कम ऑन 8 o'clock, otherwise next will come on 10 o'clock, next will come on 12, तो एक टाइमिंग ऑल्सो प्रॉपर होना चाहिए, दैट्स अ डिसिप्लिन, एक कॉमन टाइम होता है 9 to 5, देन ऑल एम्प्लॉयज़ विल कम 9 एंड वर्क till 5 o'clock, and lunch break also in the common time, and behavior also, that's also important, डिसिप्लिन होगा, ऐसे बात कर करके बैठेंगे तो काम होगा नहीं होगा, तो एक डिसिप्लिनरी होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। एंड परफॉर्मेंस अप्राइजल होते हैं, पर व्हाट इज़ अ परफॉर्मेंस अप्राइजल, इट इज़ अ पीरियोडिक प्रोसेस कंडक्टेड बाय द ह्यूमन रिसोर्स दैट असेस द इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ जॉब परफॉर्मेंस, ओके। एक एम्प्लॉय को तो बेस्ट एम्प्लॉयज़ अवार्ड वगैरह देते हैं सम ऑर्गेनाइजेशंस में, तो दैट इज़ दे आइडेंटिफाई द ईच एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी इन रिलेशन टू सर्टेन प्री एस्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया, उसके लिए क्राइटेरिया भी हो, क्राइटेरिया के हिसाब से दे विल आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑफ एन ईच एंड एवरी एम्प्लॉयज़ एंड इन द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो उसके थ्रू बेस्ट एम्प्लॉयज़ कौन है, किसका पार्ट में वीकनेस, क्यों ऑर्गेनाइजेशन का नेगेटिव कहाँ से आ रहा है, ये सब आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू परफॉर्मेंस अप्राइजल। एंड नेक्स्ट वन इज़ प्रमोशन, प्रमोशन मीन्स मूव फॉरवर्ड, तो प्रमोशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अभी 1 साल काम कर रहे हैं, 2 साल काम कर रही है, एक न्यू रिक्रूटमेंट आ गया, उसके साथ फिर से काम कर रही है, दैट्स नॉट फेयर, राइट। तो ये प्रमोशन कैसे होते हैं, 2 तरीके से होता है, वन इज़ सीनियोरिटी, वन इज़ मेरिट, ओके, बोथ आर द क्राइटेरियाज फॉर द प्रमोशंस, ओके। इट इज़ 2 टाइप, वन इज़ हॉरिजॉन्टल, एक सेम लेवल पे उन लोगों का प्रमोशन होता है, वन इज़ वर्टिकल होते हैं, वर्टिकल मीन्स हायर, मतलब पोस्ट हो गया असिस्टेंट, अभी असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, देन रजिस्ट्रार बन जाएगा, दैट्स अ हॉरिजॉन्टल लेवल, ओके, हायर पोजीशन। इट इज़ नेसेसरी फॉर रिवार्डिंग एन एम्प्लॉयज़ फॉर, इट्स नेसेसरी ऑल्सो, राइट, प्रमोशंस आर नेसेसरी, इट्स एनकरेज अकम्पलिशमेंट होते हैं, एक देयर वी आर थ्रू प्रमोशंस, एक ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है, एम्प्लॉयज़ को मोर बूस्टअप करना, अदरवाइज एक मोटिवेशन देना, ये सब है प्रमोशन के थ्रू। प्रमोशन के साथ क्या होता है, सैलरी स्केल ऑल्सो बढ़ जाते हैं, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाते हैं, तो उसका परफॉर्मेंस लेवल ऑल्सो विल इंक्रीज, ओके, दैट्स द मेन एम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू प्रमोशन।
And pay and service conditions. Salary scale should be determined on the basis of the current and expected cost of living of an individual and his family. Right? We already told you equal salary for equal work. That is also one condition. And एक minimum salary all the organization will fix for this post and this post. Individual post के लिए इतना इतना salaries. Oh, कैसे they will fix the salary based on and the करंट एंड एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ ए लिविंग फॉर एन इंडिविजुअल वो देखते हैं सोसाइटी में कैसे है नॉर्मल एक इंसान को जीने के लिए कितना चाहिए वो हिसाब से दे विल फिक्स द सैलरी स्केल ए साउंड एंड अट्रैक्टिव इंसेंटिव स्कीम टू बूस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोडक्शन ऑफ कोर्स सैलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन all the individuals life because they have family they need to survive, so salary also important. If better salary then their post also that much responsible and they need to work like जैसे है salary scale जैसे they will work with that level also. Okay, so it's attractive incentive है तो they will boost their efficiency and production. Same time proper leave structure also say of course all months 30 or 31st days तक पूरा काम करना है तो they will tired, their brain will tired. Okay, that won't get any better result for an organization. So same time proper leave structure also and very important, and holiday list, hour of work, rest period, staff welfare and office accommodation conditions, healthcare policy and housing policy should be clearly defined and communicated to the employees, so that will give a better mind for an employee and get a relaxation in the organization on the work time. So नेक्स्ट इज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशन. एक एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप में इफ दे नीड टू वर्क यूनिटी इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर. ओके, सो जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, दे नीड टू वर्क जॉइंटली, राइट. एक सपोर्ट देना तो वहाँ पे सपोर्ट देना है. इफ़ एक डिसीजन मेकिंग में वो इन्वॉल्व है तो डिसीजन मेकिंग करना है, उसके लिए सपोर्ट कौन करना है, अदर स्टाफ्स करना है. तो दैट इज़ द एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन. एंड राइट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स राइट्स, उसके लिए भी फॉर पब्लिक सर्वेंट्स के लिए आर्टिकल्स 14 to 32 फंडामेंटल राइट्स में भी बता दिया है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर अंडर द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वर्क कंडीशन एंड एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशन कैसे होना चाहिए फॉर पब्लिक servants, their rights also there. Okay, they mentioned in these articles. Motivation and moral, administrative behavior कैसे होना चाहिए employer and employee के between, this is also important thing. And next is grievances and redressal mechanism. Of course, एक organization है, एक group of people है, where there is a group of people, there will be coming some suggestions, some grievances, some complaints and all things. Okay, उसके लिए एक mechanism होना चाहिए, सबका grievances सुनना चाहिए, then उसके हिसाब से वो solve करना भी चाहिए. That's a basic need of an organization, right? So grievance and redressal mechanism एक department each organization में होना चाहिए. कंप्लेन भी सुनना है, उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व भी करना है एंड अच्छे से अच्छा वाला सॉल्यूशन लेना भी ज़रूरी है. एंड कोड ऑफ कंडक्ट, अनदर फंक्शन इज कोड ऑफ कंडक्ट. ए राइट कोड ऑफ कंडक्ट विल अवॉइड डिसहार्मनी एंड chaos. Of course, code of conduct is same as discipline. We already discussed about the discipline. It is related to discipline. Okay, code of conduct एक whatever the organization, private or public, there is a one decorum or code of conduct. All the employees, the higher level to lower level employees, line or staff agencies, they need to follow the code of conduct in the each organization. And administrative ethics, एक एथिक्स के साथ काम करना चाहिए हम. इफ़ यू आर ऑल्सो टुमारो गोइंग टू एज एन एम्प्लॉई, सो यू नीड टू वन एथिक्स वहाँ पे कीप करना चाहिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड नेगेटिव इफेक्ट एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी इन एन ऑर्गेनाइजेशन. इफ पॉजिटिव एथिक्स के साथ, अभी एक सिविल सर्विस का एक पेपर ही है एथिक्स, because what, civil servants need ethical management of the administration because it is directly depend to the citizens. Okay, their decisions and all ethical होना चाहिए. एक problem solve करने में एक ethical decision होना चाहिए. It's very important.
Okay, if you committed you are a head of the department, then you committed a work, you some employees are working under you, you need to finish that project within this 1 month. So that's your responsibility, you need to responsible for that work, you can't delay that work. That's the ethics. Okay, you have maybe some 31 days का लीव, पूरा 1 month लीव करके तुम आप घर पे बैठ सकते हैं, बट दैट्स बैठना इज नॉट एन एथिकल चीज़, राइट? सो दैट्स द पॉइंट ऑफ व्यू इन एडमिनिस्ट्रेटिव ethics. And a legal framework to check erosion of ethics and corruption. If ethics and of course whatever the in government, our administrative, if in governmental administrative level or private administrative level there is corruption is a common thing, and ethical level पे भी some लोग काम नहीं करते हैं, उसके लिए legal framework बना दिया है. उसके लिए क्या क्या है? One is Prevention of Corruption Act 1947 and 1988, and Civil Servants Conduct Rules like All India Service Conduct Rule 1954 and Central Civil Service Conduct Rule 1955 and Railway Service Conduct Rule 1956, and Santanam Committee, Central Vigilance Committee and State Vigilance Committee, they will inquire about the corruption. Also look at the financial matters and other crimes also. And Central Bureau of Investigation, Lokpal and Lokayukta. Now you already recently see the role of Central Bureau of Investigation, CBI ka role, and other related cases are nowadays in news. You just go through that current affairs, you will get an idea. Okay, and retirement plan. ऑफ कोर्स रिटायरमेंट इज ज़रूरी है. एक एज के बाद इंडिविजुअल का एफिशिएंसी कम हो जाता है, तो वहाँ पे रिटायरमेंट इज़ इम्पोर्टेंट. देन ओनली न्यू ब्रेन्स विल कम इन टू द ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ अ नेसेसरी एज इट हेल्प्स increase efficiency of public services and organizations by eliminating employees from services due to old age, infirmity, inability to perform duties anymore, etc. It is bring new and fresh blood and ideas. Okay, pension and retirement benefits help to secure their future also. This personal administration is a process of cycle. अभी रिटायरमेंट हो गया, वहाँ पे न्यू फ्रेश एप्लीकेंट आ रही है, फ्रेश आ रही है, तो देन दे विल ऑल्सो go through all these functions. We already told you, one is one of the vacancy they made, and then they will apply for that post. then recruitment होगा, तो उसके लिए आ गया तो उसके लिए ट्रेनिंग होगा. पूरा ये पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस में द न्यू कमर ऑल्सो विल गो थ्रू दिस, एंड देन देयर रिटायरमेंट एज ऑल्सो विल कम. सो दिस इज ए साइक्लिक प्रोसेस. ओके, तो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी ऑल आर इन द पार्ट ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेशन, एंड इज़ अ प्रोसेस साइकिल. इट कंटिन्यूज विदाउट द डिले. एक डिले नहीं होना चाहिए. डिले हो गया तो ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन का काम वहाँ पे रुक जाएगा, तो डिले नहीं होना चाहिए. इट्स a continuous process. Okay, so today we will wind up, and hope you understood this topic. If any doubts, you can comment on comment box. Okay.